So we are doing Srimad Bhagavatam, first canto, 8th chapter, verse number 49. Baladuja shruhan mitra pitre bhratra gurudraha namesya nirayan moksho hiyapi varsha yutat yutah. Translation: I have killed many boys, brahmanas, well-wishers, friends, parents, preceptors, and brothers. Though I live Though I live millions of years, I will not be relieved from the hell that awaits me for all these sins. Who wants to read the purport? A short purport, but um, amazing. I can read, Prabhuji. Yes, please, Prabhu. This is okay. Yeah. Whenever there is a war, there is a certainty a massacre of many innocent living beings, such as boys, Brahmins, and women, whose killing is considered to be a greatest of sin. There, they are all innocent creatures, and in all circumstances, killing of them is forbidden in the scripture. Maharaj Yudhishthir was aware of this mass killing. Similarly, there were friends, parents, the preceptors also on both sides, and all of them were killed. It was simply horrible for him to think of such killing, and therefore he was thinking of residing in hell for millions and billions of years. Hare Krishna. What an uh, that's okay. That's okay, Puja Matadi. So, what an amazing purport. So, हो क्या रहा है? Now, अपने Yudhishthir Maharaj, this is the beauty of a Kshatriya. ये जो क्षत्रिय, एक्चुअली नॉट क्षत्रिय, आई शुड से क्षत्रिय, दिस इज द ब्यूटी ऑफ राज ऋषि, है ना. राज ऋषि मीन्स समवन हु इज अ किंग बट ही इज अ ऋषि, है ना. ऋषि actually means someone who has actually controlled their senses completely and they are not fooled by the material illusion. लेकिन अगर आप तरीके से, युधिष्ठिर महाराज is still in material illusion because there's a difference between material illusion, there's a difference between material thinking and spiritual thinking, है ना. Spiritual thinking होती है when you are going above the three modes, सदगुण रजगुण तमगुण के ऊपर निकलते हैं, then we become spiritual, ठीक है. या फिर तो we transcend these three modes. लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज अभी ये बात कर रहे हैं, he is still living in that material body, देहात्म बुद्धि, है ना. देहात्म बुद्धि का क्या मतलब होता है? देह, identifying with this body. So what, but materially भी बात करें तो it is a very highly elevated state in materialism as well, है ना. कैसे? Because वो कह रहे हैं कि उनका क्या कहना है एक्चुअली कि दुर्योधन जो था, दुर्योधन अगर राजा बनता, दुर्योधन he was not as great as Pandavas, but he was not a bad king in the sense कि ऐसा नहीं है कि वो अत्याचार कर रहा है, लोगों को मार रहा है, प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है. And he was a good fighter as well. Like everything was fine with him, है ना. उसके पास प्रॉब्लम्स काफी सारी थी, लेकिन ऑब्वियसली युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कि अगर दुर्योधन भी राजपाट चला रहा होता तो अपनी प्रजा को वो प्रोटेक्शन दे रहा होता, है ना. सो मेरी वजह से मेरे को राजपाट चाहिए था, इस वजह से मैंने इतने सारे लोगों को मरवा दिया, ठीक है. नाउ सिमिलर एग्जैक्टली सेम थिंग अगर हम भगवत गीता भी देखो, भगवत गीता में जो हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर, उसमें भी एग्जैक्टली सेम थिंग हो रही है अर्जुन के साथ. अर्जुन, डिफरेंस क्या है? युधिष्ठिर महाराज युद्ध के बाद उसमें है, कंफ्यूजन में है, और कंफ्यूजन में, और कंफ्यूजन में था. और वो क्या बोलता है, बोल रहा था कि आई कैन नॉट थिंक प्रॉपरली, गांडीव इज, आई एम, गांडीव इज स्लिपिंग आउट ऑफ माई हैंड्स, है ना. और आई डोंट नो व्हाट टू डू, है ना. वो बहुत कंफ्यूज हो गया था. वो क्यों हो गया था फिर उसमें शिला प्रभुपाद बड़े अच्छे से बताते हैं
बॉडीली कंसेप्शन ऑफ माइंड, बिकॉज ऑफ बॉडीली कंसेप्शन ऑफ माइंड का मतलब क्या मतलब है कि हम लोग अपनी आइडेंटिटी मान रहे हैं दिस बॉडी, है ना। अगर जैसे ही हम लोग इस बॉडी को अपनी आइडेंटिटी मानते हैं, व्हाट हैपेंस, वी स्टार्ट relating everything that is happening in our life to everything associated with us। कैसे? आई हु कोई पूछेगा हु एम आई एम अ फादर, आई एम अ ब्रदर, है ना, आई एम ए सन, आई एम ए सन इन लॉ, है ना, आई एम ए मैनेजर, आई एम भक्ति सेल सर्वेंट लीडर, है ना, आई एम यू नो अ टीचर, है ना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई एम। बट ये क्या है, ये मेरी पहचान है ना, ये मेरी भौतिक पहचान है, ठीक है। अब ये भौतिक जो पहचान है, इफ आई, जिस लेवल पे मैं इससे अपने आप को आइडेंटिफाई करूंगा, उतना ही लेवल पे मेरा इल्यूजन बढ़ेगा, है ना। तो हमारे उसमें एक श्लोक आता है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तम। क्या मतलब है इसका? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, है ना, सारी उपाधियां, ये जो हमारे जो आइडेंटिटी है, इसको हम लोग उपाधियां, उपाधि का क्या मतलब होता है, यू हैव अ डेजिग्नेशन, आइडेंटिटी, है ना, ये मेरा धर्म है, ये मेरा के लिए मेरे को काम करना है, इट्स इट्स ड्यूटी, बट दैट्स नॉट हु आई एम। कोई बता सकता है हु एम आई? हु इज हु इज द सोल? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ a soul? Anybody? Doesn't have to be right, like, हरे कृष्ण प्रभु। dictionary प्रभु correction। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रभु पोजीशन है ना, कि हाँ कृष्णेर नित्यदास, जीवर स्वरूप हाँ, और कृष्णेर नित्यदास, ब्यूटीफुल, तो जीवे सोल जी, सोल की यस, वही रियल आइडेंटिटी है। दैट्स इज करेक्ट। हमारी सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है, रियल आइडेंटिटी, विच इज जीवरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। एक, इसमें दो तीन चीजें हैं, एक तो कृष्ण है, एक है नित्य, और एक है दास। ये तीन तीन जो है ना, ये पूरा का पूरा जो वो श्लोक है, उसमें तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। नित्य दास मतलब इटर्नल सर्वेंट्स, और किसके इटर्नल सर्वेंट? कृष्ण के। एंड दिस इज आवर ट्रू आइडेंटिटी। नाउ व्हाट हैपेंस इज, आप सोचो, हम लोगों को अगर खुश रहना है, हम लोगों को अगर सेटिस्फाइड रहना है, हम लोगों को अगर पीसफुली रहना है, वी नीड टू वी नीड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर आइडेंटिटी। सपोज आई एम ए फादर, ठीक है, नारायण के सामने मैं जब फादर, आई एम ए फादर फिगर, तो नारायण के सामने इफ आई एम behaving like a little child, or saying things that I should not be saying in front of my son, then I am acting against my identity for that moment, है ना। और जब भी कोई आइडेंटिटी के अगेंस्ट वो करता है, यूजुअली आइदर पीपल मेक फन ऑफ देम और दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्योंकि दे आर गोइंग अगेंस्ट देयर आइडेंटिटी, है ना। अगर मैं मम्मी के सामने, है ना, रेस्पेक्ट नहीं दिखाऊं, सो आई एम गोइंग अगेंस्ट माई आइडेंटिटी, दैट आइडेंटिटी ऑफ ए सन, है ना। सो होता क्या है कि यूजुअली हम लोग अगर हैं, एक तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है, और दूसरा, इट विल नेवर गिव अस पीस ऑफ माइंड, इट विल नेवर गिव अस हैप्पीनेस। नाउ हमारे भागवतम में, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता क्लियरली बताते हैं कि जितना ज्यादा हम लोग इस देहात्म बुद्धि कि मैं ये बॉडी हूं, इससे बाहर निकलेंगे, उतना ही इजी और उतनी ही पीसफुल और उतनी ही शांति में हमारी लाइफ हो जाएगी। एक बंदा है, कांट रिमेम्बर हिज नेम, हिज आई थिंक अमेरिकन बंदा है, और ही इज आई थिंक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एंड ही इज क्लाइंबर, वो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं ना, फ्री फ्री स्टैंड रॉक रॉक क्लाइंबिंग करता है वो। बट ही स्पेशलाइजेज इन, क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी, है ना। सो उसने कहाँ से कॉन्सेप्ट निकाला है सारा का सारा? नारद भक्ति सूत्र से, नारद भक्ति सूत्र। एंड ही टॉक्स लॉट अबाउट एनर्जी, लाइक हम लोग एनर्जी हैं, लाइक एंड ये जो बॉडी है, दैट्स नॉट हु आई एम, वी आर नॉट दिस बॉडी, है ना। बट ही डजंट टॉक अबाउट, कहता है कि हमारी जो स्पिरिट है, हमारी स्पिरिट बॉडी के अंदर नहीं है, हमारी बॉडी स्पिरिट के अंदर है।
है ना. सो ही वाज व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट वाज कॉन्शियसनेस, है ना. और एनर्जी की बात कर रहा था. वी और हैव ऑरा. आपने देखा होगा ना हमारे उसमें पोस्टर्स में, हमारी ग्रंथों में, हर जगह ना भगवान के सिर के आगे एक ग्लो सा होता है ना. एक ग्लो सा, वो जो ग्लो होता है उसको कहते हैं आभा, है ना. आभा मतलब एनर्जी जो निकल रही है ना. सो वो जो एनर्जी, पर्सनल एनर्जी होती है, उसको वो डिफाइन करता है. तो वो बता रहा था कि अगर हम एवरी टाइम वी आर नॉट, उसका कहना उल्टा था. कहता है जितनी देर हम लोग अपनी बॉडी से बाहर रहने की कोशिश करते हैं उतना हम परेशान रहते हैं. अब इसका क्या एग्जाम्पल दिया उसने. उसने एग्जाम्पल दिया कि जैसे आप क्लास में बैठे हो लेकिन आपका दिमाग कहीं और है. दैट मीन्स यू आर नॉट प्रेजेंट. तभी तो हम लोग कहते हैं बी इन द प्रेजेंट, बी इन द मोमेंट, है ना. तो कहता है कि व्हेन यू आर बीइंग इन द मोमेंट होता है, ओनली देन यू कैन फील अ लिटिल बिट ऑफ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, या फिर पीसफुलनेस. वो ये कहता है. नाउ हमारे भागवत में भी ये लिखा है, लेकिन वो क्या बता रहा है. वो कह रहा है बीइंग प्रेजेंट का मतलब क्या है कि यू बिकम हु यू आर, लाइक स्टे हेयर, डोंट वॉन्डर अराउंड हेयर एंड देयर. हमारे भागवत में क्या लिखा है कि बिकम हु योर ट्रू आइडेंटिटी इज. दैट मीन्स कृष्णेर नित्यदास. कृष्णेर नित्यदास इज ए बिगर अम्ब्रेला, है ना. एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है. उसके अंदर हमारी छोटी छोटी आइडेंटिटीज हैं. जैसे मैं फादर भी हूँ, ब्रदर भी हूँ, सन भी हूँ, है ना. अंकल भी हूँ, ये भी है ना. मामा भी हूँ मैं, है ना. चाचा भी हूँ. तो ये जो सारी डेजिग्नेशन है, ये किस अम्ब्रेला के अंदर आनी चाहिए. ये मेरी अम्ब्रेला होनी चाहिए. जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास. जितना मैं इसमें, जितना इजीली मैं, और जितना कॉन्फिडेंटली, और जितना क्लोजर मैं इसमें जाऊंगा, उतना ही इजियर हो जाएगा मेरे लिए लाइफ. कोई बोलेगा जैसे आज वो बंदा बोल रहा था कि डज दैट मीन कि आप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यू विल ऑलवेज बी पीसफुल, या फिर यू विल ऑलवेज बी हैप्पी. नो, नॉट रियली. लेकिन क्या होगा कि इट विल बी इजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड दैट हैप्पीनेस, ऑलवेज बीइंग हैप्पी इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ. समझ में ना. होता क्या है कि हम लोगों ने जो एसएसआर, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन करा था पहले, हमारा एम क्या था. एवरीबडी इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस. और हमने क्या बोला कि हैप्पीनेस, द ओनली हैप्पीनेस यू कैन गेट इज फ्रॉम भक्ति, है ना. लेकिन एक्चुअली द रीजन व्हाई वी स्पोक अबाउट हैप्पीनेस एट दैट मोमेंट इज बिकॉज हैप्पीनेस से ही सब लोग रिलेट कर पाते हैं. और उनको बोलेंगे हैप्पीनेस इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ. तो हम लोग किस हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं. स्पिरिचुअल हैप्पीनेस. वो हैप्पीनेस जो हमें भगवान के पास मिलती है, विच इज कॉल्ड इटर्नल हैप्पीनेस, सनातन, है ना. सत चित आनंद, है ना. सत का क्या मतलब होता है. इटर्नल, है ना. चित का क्या मतलब होता है. नॉलेज. और आनंद का मतलब होता है ब्लिस, इटर्नल ब्लिस. और अभी हमारे पास जब हम लोग रैंगलर की जीन्स पहन लेते हैं तो इट्स नॉट इटर्नल ब्लिस. ठीक है. अगर आपको बोले हाँ ठीक है, वन डे, द फर्स्ट डे यू बाय इट, इट्स ओके, मजा आता है, लाइक इट्स गुड, आई बॉट माय फर्स्ट रिप्ड जीन्स, वट एवर इट इज, है ना. नाउ कैन यू स्लीप विद इट. नो, नॉट रियली. और समटाइम्स यू कैन. मैंने कैंपिंग में गए हैं, समटाइम्स यू डोंट हैव एन ऑप्शन, जीन्स मिस हो गए, कोई बात नहीं, बट कैन यू फील कंफर्टेबल इन जीन्स ऑलवेज. नो, यू वॉन्ट, है ना. नाउ बिकॉज वेन वी बाय न्यू क्लोथ्स, है ना, ये हम लोगों को एक थोड़ा सा सेरोटोनिन का रिलीज होता है, जिसमें वी स्टार्ट, हम लोगों को क्या लगता है हमारी आइडेंटिटी बड़ी हो गई है. कैसे बड़ी हो गई है. पहले तो मेरी आइडेंटिटी सिर्फ जहां तक है वहीं तक थी. जैसे ही मैंने गुची या आई डोंट नो, गुची बनाता है लड़कों के लिए कुछ, आई डोंट नो, बट फॉर एग्जांपल अगर मैंने वर्साचे वर्साचे की जैकेट खरीद ली, ठीक है. अब वर्साचे की मैंने जैकेट खरीदी, दैट सेरोटोनिन विल बी रिलीज्ड फॉर अ लिटिल बिट, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी थोड़ी सी बड़ी हो गई. नाउ मेरे पास कॉटन ऑन की भी जैकेट है और मेरे पास वर्साचे की भी जैकेट है. डिड यू नो मित्र प्रभु, मेरे पास वर्साचे की भी जैकेट है. मेरी एकदम से आइडेंटिटी बड़ी हो गई. जैसी मेरी आइडेंटिटी बड़ी होगी, मेरे को लगा यार ये तो यू नो और क्या होगा कि वो जो आइडेंटिटी जो मेरी बड़ी हुई है, दैट्स नॉट माई रियल आइडेंटिटी. आई एम लुकिंग फॉर दैट आइडेंटिटी. आई एम नॉट, दैट्स नॉट माई रियल आइडेंटिटी. माई रियल आइडेंटिटी इज जीवेरे स्वरूप है कृष्ण रे नित्यदास. लेकिन क्या हुआ कि मेरे को वर्साची की जैकेट मिली और मेरे को लगा नहीं नहीं नहीं, कॉटन ऑन वाली तो मेरी आइडेंटिटी है ही, वर्साचे भी मेरी आइडेंटिटी है. फिर क्या होगा थोड़े बाद, इफ आई बाय कार, न्यू कार, दैट्स दैट्स माई आइडेंटिटी. डिड यू नो अबाउट अ न्यू टेस्ला, दैट्स माई आइडेंटिटी, है ना. सडनली दैट्स माई आइडेंटिटी. नो, इट्स नॉट, इट्स नॉट. इट्स लाइक वो एक सूडो आइडेंटिटी है जो हमारे लिए
प्लेसिबो इफेक्ट कर रही है। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब क्यों? अरे यार, हैव यू सीन दोज एड्स में टेस्ला कितने खुश नजर आ रहे होते हैं जो टेस्ला की गाड़ी चला रहे होते हैं, है ना? अभी मैं वी वर ड्राइविंग ना, आज हम लोग रॉक्सी और नारायण दोनों को हॉस्पिटल डॉक्टर के पास लेके गया था। 4 घंटे लग गए वहां पे ना। वापस आ रहे थे एंड एक एसयूवी, उसकी टेस्ला की एसयूवी सामने जा रही थी। तो मैंने रॉक्सी को दिखाया, मैंने कहा दैट्स द बिगेस्ट टेस्ला कार, है ना? फिर थोड़ी देर में वो साइड में आ गई एंड उसमें टीवीज में तो हमने देखा है कि बहुत लोग दे आर वेरी हैप्पी, सनरूफ जैसा है पूरा पूरा ऊपर ना, फुल सन रूफ है पूरा का पूरा, है ना? तो बट जैसे ही उसके बाजू में मैंने खड़ी करी गाड़ी, दैट पर्सन वाज स्वेरिंग एट समवन, लाइक बहुत गुस्से में था। मतलब उसका मुंह लाल, और वो बोल रहा था तो उसके मुंह से थूक निकल रहा था, लिटरली, लाइक यू कैन सी, ही वाज सो एंग्री। तो मैंने बोला यार दैट्स नॉट द रियलिटी ना। वो टीवी में जो दिखाते हैं टेस्ला में लोग खुश खुश, खुशी इज नॉट बिकॉज ऑफ टेस्ला, है ना? इट इज ग्रेट टू ड्राइव a really good car, no problem with that, है ना? But that's not the purpose of life, and because it's not the purpose of life, it will never give you eternal happiness, है ना? I've got a friend who loves Ferrari, मतलब वो फरारी जब ग्रांड प्री में फरारी हार गई थी तो ही वॉज डेवस्टेटेड। मतलब वो उसने 2-3 दिन तक तो सिर्फ दारू में ही पड़ा रहा, वो बिका इतना, उसका बेचारा डिप्रेशन में चला गया, है ना? तो ही इज दैट बिग फैन ऑफ ए फरारी, ठीक है? अब वो मुझे बोलता है कि आई विल डेफिनेटली बाय फरारी वन डे। और मेरे को लगता है कि यार भगवान जल्दी से जल्दी इसको फरारी दिला दो, ताकि ही अंडरस्टैंड्स दैट दैट्स नॉट गोना गिव हिम हैप्पीनेस। जितना जल्दी उसको फरारी मिल जाएगी उतना जल्दी उसका जो इल्यूजन है ना वो खत्म हो जाएगा कि हाँ यार फरारी मिल गई, मजा आ गया, है ना? नाउ यहाँ पर जिस इल्यूजन की हम बात कर रहे हैं, दैट आई वांट टू ड्राइव फरारी, दैट इज एन इल्यूजन, है ना? बिकॉज आई एम आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ, माई रेपुटेशन, आई एम आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ विद वट अदर पीपल आर टेलिंग मी। तो मैं इसको बता रहा था कि तेरे को फरारी क्यों खरीदनी है, तू लोगों को बताना चाहता है कि तू कितना रईस है। कहता नहीं नहीं नहीं, आई जस्ट लव दैट साउंड। तो मैंने कहा मैं तेरे को रिकॉर्ड करके देता हूँ, तू सराउंड साउंड में सुनना उसको। इफ यू लाइक द साउंड ना, तो सुन ले साउंड। किसने मना करा है? व्हाई डू यू हैव टू स्पेंड लाइक हाफ क्वार्टर ऑफ $750 million टू बाय फरारी, है ना? तो मैंने कहा मेरे को साउंड रिकॉर्ड करके दे दो। बोले नहीं वो बात नहीं है यार, इमेजिन वो आपको वाइब्रेट होता है ना पूरी सी चेयर। मैंने कहा आजकल तो बड़ी अच्छी अच्छी वो आते हैं, मॉडलाइजर्स आते हैं, वो चेयर भी मिल जाएगी गेम वाली, वो बिल्कुल ऐसा तेरे को देगी जैसे कि फरारी चला रहा है। मैंने कहा 10-15 हजार का आता है पूरा सेट, उसमें पूरी चेयर होगी, वो हिलेगी भी ऐसी, वो टक्कर मारेगा ना तो तेरा वो भी खुलेगा, क्या बोलते हैं, एयर बैग भी खुलेगा, तो टेंशन मत ले, तेरे को मैं देता हूँ। तो फरारी के चक्कर में तो एंड तो वो मान ही नहीं रहा था, वो तो मेरे को एक्सपीरियंस करना है। मैंने कहा तेरे को एक्सपीरियंस करना है, यहाँ पर किराए पे मिलती है, यू पे अराउंड $280-300। तू तू चला ना, आधे घंटे चला, उसको क्या प्रॉब्लम है तेरे को? वो माना नहीं। देन आई केप्ट पोकिंग हिम, ना। तो कहता है यार नहीं यार। फिर उसने मान लिया कि ही वांट्स अ फरारी सो दैट ही कैन टेल हिज फ्रेंड्स, हिज फैमिली, हिज डैड, सॉरी नॉट डैड, मम, दैट यस आई एम नॉट ए फेलियर। तो फिर मैंने उसको बोला, लुक, डू यू रियली थिंक that your Ferrari, you require a Ferrari for your mother to tell you that you are not a failure? मैंने कहा तू ऑस्ट्रेलिया में है, you're running a business, you're doing so well, you have सारे manners हैं तेरे में, you're a very sorted guy, then and there is no way कि तेरी मम्मी ये सोचती होंगी कि you're a failure. What makes you think? कहता नहीं ऐसा तो नहीं सोचती है। मैंने कहा तो फिर you're not trying to prove to your mother, I think you're trying to prove it to your people, so that when you're walking, people look up to you and say, you know what, look how successful he is that right? तो काफी देर वो माना नहीं, देन वो मान गया, बोले हाँ दैट्स राइट। मैंने कहा लुक, आई सिंसियरली प्रे that you get there, so that you realize that's not the purpose of life. There is nothing wrong with owning a Ferrari, but that's not the purpose of life. There is a verse called Janma Aishwarya Shruti Shribhir Edman, क्या था लास्ट लास्ट की लाइन भूल गया मैं। जन्म, जन्म का मतलब होता है योर बर्थ, इफ यू आर बोर्न इन ए वेरी हाई फैमिली। जन्म, ऐश्वर्य, आपके पास कितना पैसा है। श्रुति, कितना सुंदर हो आप। श्री,
है ना। श्री का मतलब पैसा होता है, सॉरी। श्रुति का मतलब होता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितनी नॉलेज है आप में, कितने इंटेलिजेंट हो, कितने सुंदर हो, और कितने अच्छे घर में जन्म लिया है। अब ये जो चार चीजें हैं, इसको हमारे भागवतम में बनाया बताया गया है, इज बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन योर भक्ति, एंड भक्ति इज द पर्पस ऑफ लाइफ। व्हाट डू यू से नाउ? डज इट मीन इट्स बैड? इट्स नॉट बैड, बट इट मे बी ए वेरी बिग ऑब्स्टिकल। ऐसा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम लोगों को ये सोचना चाहिए यार मेरे को ना अब ना प्रमोशन नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि मेरे को प्रमोशन का मतलब हो गया, ब्रजेश प्रभु ने बोला है कि यार ये बहुत डेंजरस है तो मेरे को प्रमोशन नहीं चाहिए। नो नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। यू शुड बी एज सक्सेसफुल एज यू कैन बी। क्योंकि भगवान ने अर्जुन को क्या बोला था? यू गो अहेड एंड फाइट एंड बी द किंग ऑफ द होल वर्ल्ड। पांडवों को क्या बोला था? पूरा पूरे का पूरा पृथ्वी के राजा बनो तुम। ऐसा नहीं बोला एक काम करो, तुम्हें एक ना मल्टी लेवल कॉल सेंटर खोल के दे रहा हूँ, ये इसके तुम सीईओ बन गए हो, ये नहीं बोल रहे थे। दे वर द किंग्स ऑफ द होल प्लेनेट। ठीक है। क्यों बोला भगवान ने? ऐसे क्यों नहीं बोला अच्छा एक काम करो उन्होंने, एक काम करो यार तुम ना टेंशन मत लो, टेंशन मत लो तुम, मैं तुम्हारे लिए ना कुछ एक इंतजाम कर देता हूँ, तुम बस खुश रहो, तुम लोगों को जैसे तुम लोगों को लगेगा तो तुम राजा हो, बट होगे नहीं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मैं ऐसा इंतजाम कर, ऐसे भी कर सकते थे कृष्ण। उन्होंने बोला नो, यू वर्क हार्ड। So as a devotee, it's our responsibility to work hard so that we can become the best version of ourselves. अगर हमारा प्रमोशन अग, ओके अगर हमें प्रमोशन चाहिए तो इसलिए नहीं लो प्रमोशन की उससे पैसा मिलेगा एंड देन आई कैन डू अयाशी विद इट, है ना, या फिर आई आई विल बी एबल टू बॉस सम पीपल अराउंड। नो नो, नॉट फॉर दैट। यू बिकम सक्सेसफुल सो दैट समवन कम्स एंड से, मिथुल प्रभु, you know what, I want to be like you because you're such a successful person, you know you're always there, you're always amazing, आपके ऑफिस में भी you're really good, whatever you do you do really good, I want to be like you, teach me how to. Then you say, oh yeah, I'll teach you, come to our bhakti raksha, simple, है ना। So now ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है वो तब मिलती है when people see कि हाँ यार एक डिवोटी है। Devotee needs to be king of the world. Devotee doesn't need to be, we are servant of the servant of the servant, but that should be our mood. Physically, we should be king of the king of the kings of the kings. क्यों? क्योंकि that's what can give us edge on preaching. लेकिन एक और चीज का हमें ध्यान रखना है, when you are focusing, बहुत सटल है, इतना सटल है, इसीलिए कभी भी किसी भी स्पिरिचुअलिटी में अमीर बनने के लिए नहीं बोला जाता है। क्यों नहीं बोला जाता है? बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू हैंडल धर जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री, है ना, ये चारों चीजों को भक्ति के साथ हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है ना। दैट डजंट मीन कि हम लोग इन सब से दूर रहें, तो क्या होगा, लोगों को लगेगा यार पीपल हु आर फेलियर्स दे गो इन भक्ति। Jagannath Ram Prabhu is not a failure. He's an amazing. He's top of his game in corporate world, है ना। Ojasvi Prabhu, he's not a failure. He's the top of his game. Whatever he touches becomes gold in terms of work wise, spirituality wise, and that is our benchmark, है ना। सो व्हेन वी से कि यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज व्हेन ही सेइंग ओ माय गुडनेस, दुर्योधन भी करता, अगर दुर्योधन भी राजा होता तो हम प्रजा का नुकसान नहीं करता, वो मारता नहीं प्रजा को, वो भी प्रोटेक्ट करता प्रजा को। तो मेरी लालच की वजह से मैंने इन सबको मार दिया, क्योंकि थोड़ी देर के लिए एक तो उनमें ही इज ए विनम्र गाय, है ना, बिकॉज ही इज ए प्योर डिवोटी, है ना, युधिष्ठिर महाराज। सेकेंडली बिकॉज ही ही एक तो प्योर डिवोटी है, पहली चीज तो है, और दूसरी चीज क्या है कि ही इज वन ऑफ दोज पीपल, है ना, ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु इज वेरी कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ सॉफ्ट हार्टेडनेस, है ना। इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी ही इज गेटिंग ऑन टू द सेम साइड ऑफ देहात्म बुद्धि, देह। He was considering himself to a body. He's considering all the people who died as body, and he's considering all the considering his throne
टू बी ए मट्टी, टू बी द रीजन व्हाई ही एवरीबडी डाइड, है ना। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद ना नेक्स्ट वाले वर्स में बताएंगे कि यार ये जो हुआ है, ये जो किलिंग थी, इट्स नॉट फॉर योर सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट्स व्हाई इट वाज नॉट सिंफुल, है ना। दैट इज द एसेंस ऑफ दिस वर्स एंड द नेक्स्ट वर्स। सो अगर हम लोगों को प्रमोशन चाहिए बिकॉज आई वांट टू शो ऑफ, बिकॉज आई वांट टू बी बेटर देन अदर, आई वांट टू शो पीपल कि आई एम बेटर देन यू, अगर हमें इसलिए चाहिए ताकि हम लोग ज्यादा पैसा कमा सकें और उस ज्यादा पैसे से वी कैन शो ऑफ पीपल लाइक हाउ ग्रेट आई एम, then there is an issue. Then it is called sense gratification, and that becomes a very big obstacle in our bhakti, है ना। Because द रीजन, हम लोग जिस रीजन से हम लोग इस पृथ्वी पे हैं उसका एक ही रीजन है कि बिकॉज हम लोगों ने भगवान को देखा, भगवान मजे कर रहे हैं, हर कोई इनकी पूजा कर रहा है, बोले यार मेरी क्यों नहीं पूजा हो रही है। एंड दैट थॉट जो हमारे दिमाग में आया, तुरंत ही उस थॉट के कारण ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड बना दिया, बनाया भगवान ने। पूरा मटेरियल वर्ल्ड उस थॉट के कारण बनाया, हमारे उस थॉट के कारण। वो थॉट क्या था? थॉट वाज दिस कि व्हाई आई एम नॉट enjoying लाइक कृष्ण। तो जो मेंटालिटी है, शिला प्रभुपाद बताते हैं कि रावण मेंटालिटी और हनुमान मेंटालिटी का डिफरेंस है। जब जब हम लोग सोचते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को प्रमोशन चाहिए, है ना, अगर मेरे को प्रमोशन इसलिए चाहिए ताकि if I'm very materially successful, when people get impressed by my material success, they will come and ask me for guidance, and I can guide them through bhakti. What am I doing? I am trying to get these people to bring these people to Krishna. है ना, क्योंकि we are all Krishna's energy. So what I'm doing is I'm trying to take Krishna's energy and उनका मिलन करा रहे हैं कृष्णा से, ठीक है। Now Krishna loves this. और दूसरा सिनेरियो क्या है? I want to get promotion because I want to show off. I want to tell people that, you know what, I am great. Krishna is okay. Krishna is okay, but I am great. है ना। और कोई पूछता है यार भाई इतना सक्सेस कैसे मिली यार? मेहनत है यार, अब ये ना बाल ये धूप में सफेद नहीं करे हैं, मेहनत करी है। And when you say that, you're not giving credit to Krishna. So what you're doing is this person, अब जो पर्सन है सपोज वो भक्ति में भी है, तो मैं उसको उसको बोलूंगा यार बहुत मेहनत करी यार, पता है 80-80 घंटे हफ्ते के काम करे मैंने। तो बोले वो जो बेचारा दूसरा बंदा है वो 80 घंटे नहीं 40 ही घंटे काम करता है, बाकी भगवान के मंदिर में जाके सेवा करता है, ये करता है वो करता है, एंड देन ही थिंक्स यार नहीं यार मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी थोड़े से ना अपने सर्विस के आवर्स कम कर देता हूँ ताकि मैं भी थोड़ा ज्यादा कमा सकूं। तो क्या करा मैंने? भगवान की जो एनर्जी को भगवान से मैंने दूर कर दिया। और किस लिए करा? अपने को, वो मैं उनको इसलिए करा क्या, ताकि दे कैन गेट इम्प्रेस्ड बाय मी। सो रावण क्या कर रहा था? रावण वाज ट्राइंग टू गेट सीता एंड ही वाज टेलिंग सीता डोंट वरी अबाउट राम, आई एम बेटर। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। अगर हम किसी अम, किसी चीज का अटेंशन निकाल के अपने ऊपर डाल रहे हैं, वी आर बीइंग लाइक रावण। और एक ये जो मेंटालिटी है ये मंदिरों में भी दिखती है। आपने कभी देखा होगा, मतलब आई डोंट थिंक यू शुड सी, बट मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। अगर ये हो भी रहा है तो डोंट सी इट, क्योंकि कई बार सम पीपल आर ड्रेस्ड अप, मंदिर में भी इतना जबरदस्त ड्रेसअप करके आते हैं बिकॉज दे वांट एवरीवन टू सी देम। एंड अ डिवोटी इज समवन लाइक नंद दुलाल प्रभु, he doesn't want anybody to see him, he want everyone to just see Krishna, that's it। तो वो क्या करेंगे? मंदिर में आएंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे सबको और बिल्कुल मंदिर के पीछे खड़े होंगे, क्योंकि वो थोड़े से लंबे हैं। वो कहते हैं मेरी वजह से किसी का ना व्यू नहीं ढके, इसलिए मैं पीछे खड़ा होता हूँ। वो हमेशा भी मंदिर खाली है फिर भी पीछे खड़े होंगे। क्यों? बिकॉज ही डजंट वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ एनीवन। और एक बार वो मेरे मैं गया लेट, तो मैं उनके पीछे खड़ा हुआ तो उन्होंने मुझे आगे कर दिया। तो मंगला के समय ज्यादा हम लोग बहस नहीं कर सकते, तो मैं खड़ा हो गया। फिर वो मुझे बोलते हैं ब्रिजेश प्रभु, आपको देखने के चक्कर में शायद कृष्णा की नजर मेरे पे भी पड़ जाए, इसीलिए मेरे को आपके पीछे खड़ा होना। तो दिस इज द मेंटालिटी ऑफ डिवोटी, दिस इज द मेंटालिटी ऑफ हनुमान। और दूसरी मेंटालिटी क्या होती है?
do you know what kind of pagadi I'm wearing? Do you know how amazing? Look at this. Uh, क्या बोलते हैं उसको, शॉल? हैव यू सीन माय शॉल? प्योर रेशम, यू नो। अभी लेटेस्ट आई है, अभी लेटेस्ट सी। इधर पूरे ऐसे देखो, इसमें ना क्रीज ही नहीं पड़ता है भैया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, डोंट वरी अबाउट भगवान को कैसे ड्रेसअप कर रखा है, यू लुक एट मी। सो पीपल वांट टू डिस्ट्रैक्ट पीपल फ्रॉम गोइंग टुवर्ड्स कृष्णा, दे वांट पीपल टू कम टुवर्ड्स देम। दिस हैपेंस इन प्रीचिंग एज वेल। Some people, when they are presenting Krishna consciousness, they are presenting Krishna consciousness beautifully, not because they want to glorify Krishna, they want people to glorify them. Look at his amazing presentation. Do you see the way he speaks? Oh my Lord, everything stops, the whole world stops, pin drop silence, people don't even want to breathe when he's talking. Do you know that? What's happening? We are trying to become like Ravan. We want to take attention from Krishna and put all attention to us. Now, bhakti is a process of transformation from Ravan to Hanuman. It's a big deal, massive. आप सोचो कहाँ रावण और कहाँ हनुमान, है ना? This journey, ये जो जर्नी है, दिस जर्नी में जो अपने फुल एफर्ट के साथ निकल पड़ता है, डजंट मैटर वो हनुमान बन पाए या ना बन पाए, अगर वो उस पाथ में घुस गया है एंड ही इज गिविंग ऑल हिज बेस्ट, दैट पर्सन इज एज गुड एज हनुमान फॉर कृष्णा. Acharya says that person is as good as Hanuman. You don't have to become Hanuman because we can't become Hanuman, है ना? But if we are trying really best to go away from that Ravan mentality and running towards Hanuman mentality, our full effort, that's what Krishna wants. And that effort is shown by lot of things. What time you wake up, है ना? We have 100 million reasons not to get up early. 100 million, है ना? But there is one reason to get up early, because our Shastra says that Krishna wants us to get up early so that we can chant his holy name early in the morning, Brahma Muhurat mein. Now we have to think, वो जो 100 million reason है, are they more powerful than that one reason? पर्सन जो पूरी ताकत के साथ हनुमान जी के एटीट्यूड की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है, ही अंडरस्टैंड्स दैट getting up early and doing my rounds first thing in the morning is the most important thing, most important activity of life, not for the day. Most important activity of life is chanting the holy name of the Lord, है ना? जब महाराज युधिष्ठिर, who is such an elevated soul, when he can get confused and get into illusion, who are we, है ना? कहते हैं, मम्मी बता रही थी एक स्टोरी, क्या हुआ कि कृष्ण जी was always every day he used to go and see द्रौपदी, है ना? सिस्टर है ना उनकी. सो जो सत्यभामा और वो थी उनकी वाइफ रुक्मणी जी, उन्होंने बोला यार ये क्या है यार, ये रोज रोज चले जाते हैं. बोला, अच्छा क्या है उनमें? तो पूछने की वो तो थी नहीं. सत्यभामा तो खैर पूछ लेती है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, अभी अपन देखते हैं जाके. दे वेंट देयर, और बड़ी जेलसी थी अंदर, है ना? आई एम नॉट टू श्योर बाय द वे दिस पास टाइम इज रियल और नॉट, है ना? बट इट हैज गॉट एन अमेजिंग मैसेज इन इट. तो मम्मी बता रही हैं कि वो कहते हैं कि जब वो वहां गई तो वो अपने बाल सुखा रही थी द्रौपदी, है ना? तो कृष्ण जी बोलता है, अरे द्रौपदी तुम बाल मत सुखाओ, अभी ये दोनों आ गई ना तुम्हारी भाभियां, ये अब तुम्हारे बाल बाल यही तुम्हारे बाल सुखा देंगी और ये तुम्हारे तेल भी लगा देंगी, कंघी भी कर देंगी, डोंट वरी. तो द्रौपदी बड़ी खुश हो गई. अब वो बैठी तो सत्यभामा जो थी, वो सत्यभामा इज ए लेफ्ट विंग, है ना? लेफ्ट विंग मतलब ही शी इज ऑलवेज ऑलवेज एंग्री विद कृष्ण, ऑलवेज, है ना? कोई मतलब ही नहीं है, मतलब वो सही कुछ भी करें वो सही हो ही नहीं सकता, है ना? तो सत्यभामा ने क्या करा, शी स्टार्टेड प्लकिंग उनके द्रौपदी के बाल उखाड़ने लगी एक एक करके. और वो एक बाल उखाड़े अपने आप आवाज निकले, हरे कृष्ण. मैं कौन, ये कहा, ये क्या हुआ? फिर निकाला, फिर कृष्ण. तो उधर उधर देखा, रुक्मणी जो है, रुक्मणी इज वेरी लाइक, उनको पता है, शी नोज, है ना? तो रुक्मणी जी बोलती हैं उनको
कि यू नो ये जो द्रौपदी है, इसके रोम रोम में कृष्ण बसे हैं। एंड ये रीजन है कि वो वहां से अट्रैक्ट होके इधर आते हैं, है ना। हमारे में उतना वो नहीं है अभी, जबकि दैट्स नॉट ट्रू, बट दैट वाज एन एग्जांपल, है ना। और सिमिलर एग्जांपल था जब अर्जुन के पास भेजा गया था कि देख के आओ, अर्जुन सो रहा है, उसको उठा के लाओ, है ना। इनको बोला था रुक्मणी जी को कि अर्जुन सो रहा है, उनको उठा के लाओ क्योंकि प्रसादम का समय हो गया। तो वो अंदर गई, बोले यार ये कैसा है यार, हमेशा अपने दोस्त की बातें करता रहता है कृष्ण, ना। जब जाके देखा अर्जुन वो स्लीपिंग, और उसके शरीर में से कृष्ण 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 ध्वनि निकल रही है, मुंह बंद है एकदम, उसके शरीर में से ध्वनि निकल रही है। एंड देन शी गॉट रियली क्रेजी, लाइक ये क्या है। तो बोले जब इसके मुंह बंद कर दो तो पूरे शरीर में से आवाज आने लग जाती, ही कैन नॉट स्टॉप चैंटिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड, है ना। एंड दैट इज व्हाई ही इज वेरी क्लोज टू कृष्ण। भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, भक्त्या माम अभिजानाति, मेरे को अगर जानना है तो ओनली डिवोटीज कैन अंडरस्टैंड। यावान यश्चास्मि तत्वता ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशिते तदनंतरम। There is no way anybody can understand Krishna until they become they actually start doing practicing devotional service. Bhaktya mam abhijana. Now, the let's come back to Maharaj Yudhishthir. And Maharaj Yudhishthir, when he killed, because of his soft heartedness, because भक्ति क्या करती है, हमें विनम्र बनाती है, विनम्र, है ना। We become so soft hearted, we understand that what, I am the lowest of the lowest of the lowest, है ना। और दैट इज द जो अभी इनको फीलिंग है, हमारे एक आचार्य बताते हैं, आई थिंक भक्ति विनोद ठाकुर, कि युधिष्ठिर महाराज वो फीलिंग त्रनाद अपि सुनीचेना, तो है ना, वो तृण के समान अपने आप को मान रहे थे। बोले मैं इतना गिरा हुआ हूँ कि मेरी वजह से सारी की सारी लड़ाई होगी। लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो लीला है, इससे हमें क्या समझना है कि वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड, वी शुड नॉट बिकम bewildered by the material nature, है ना। कैसे? बिकॉज मटेरियल नेचर इज डिजाइंड, कोई कई कई लोग बोलते हैं मटेरियल नेचर इज डिजाइंड टू कीप अस अवे फ्रॉम कृष्णा। दैट्स नॉट ट्रू। मटेरियल नेचर इज डिजाइंड टू गिव अस प्योरिटी रिक्वायर्ड टू गो बैक टू कृष्णा। कैसे? जैसे जिम हम जाते हैं, जिम में आप वेट उठाते हो, वेट इज अगेंस्ट यू। अगेंस्ट का क्या मतलब होता है? आप ऊपर उठाना चाहते हो लेकिन वो वेट नीचे जाने की कोशिश करता है। लेकिन तो हम लोग ये थोड़े बोलेंगे अरे वेट, कैसा बेवकूफ है तू, यू आर नॉट ऑन माई साइड, बिकॉज मैं तेरे को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ तो इतना भारी है। वी लिफ्ट द वेट बिकॉज उसका जो दूसरे डायरेक्शन में जो फोर्स है उसके कारण हमारी मसल्स बन रही है। सिमिलरली जो मटेरियल नेचर है, मटेरियल एनर्जी है, वो क्या करती है, वो कई लोग बोलते हैं ना कि और जो कलयुग है, ये जो माया देवी है हमें भटकाती है। माया देवी हमें भटका नहीं रही है, माया देवी हमें एक फ्रिक्शन दे रही है जिसके कारण हमारी जो स्पिरिचुअल मसल्स है बनेगी, और उसके कारण हम लोग प्योरीफाई होंगे, जिसके कारण वी विल बी एलिजिबल टू गो बैक, होम बैक टू वर्ल्ड। अभी हम लोग चले गए तो वहां पर गंदगी करेंगे, इसको बोलेंगे अरे तेरे को ये सेवा कैसे मिल गई, ये तो मेरे को अच्छी लगती है ये सेवा, हट, मेरे को करने दे। नहीं तो बोलेंगे यार ये देखो, वो दूसरों को जाके बोलेंगे ये देखो ये मेरी सर्विस लेके खा गया, मैं 2 दिन पृथ्वी पे गया, ये मेरी सर्विस खा गया, है ना। आपने सुना होगा मंदिर में भी कई बार इस तरह की बातें होती हैं कि ये देखो मेरी सर्विस किसने ले ली, मेरी सर्विस उसने ले ली। दैट्स एक्चुअली नॉट भक्ति एट ऑल, है ना। क्यों क्यों नहीं है भक्ति? बिकॉज भक्ति का मतलब है कि डजेंट मैटर, वट एवर प्लीजेज माई लॉर्ड, वट एवर। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विपत्ति, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शनम, है ना। भगवान वो कौन थे, अ, भगवान शिव पार्वती को बताते हैं महाराज चित्रकेतु के लिए कि ये ना नारायण परा, है ना, ये नारायण के भक्त हैं, है ना। ना कुतश्चन बिब्बते, उनको डर ही नहीं लगता। क्यों नहीं डर लगता है? बिकॉज उनकी एक ही चीज है, किस तरीके से माय लॉर्ड बिकम्स हैप्पी। अगर इफ दैट मीन्स कि मेरे को नर्क में जाना पड़ता है, आई एम हैप्पी टू गो, है ना। ये जो भाव है, ये लाने के लिए हमें क्या करना है? हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, हम कैसे ना कैसे वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर, कभी कोई लड़ाई होगी, सपोज घर में, ऑफिस में किसी से लड़ाई होगी, जस्ट थिंक अबाउट इट, इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ?
go back home back to Godhead. Is this gonna help me? No, just let it go. घर में बीवी से लड़ाई हुई, व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ, गोइंग बैक होम बैक टू गॉड, इज दिस गोना हेल्प मी? नो, लेट इट गो, है ना। और स्पेशली हस्बैंड्स के लिए, जस्ट से आई एम सॉरी। आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है कि किसकी गलती थी, जस्ट से आई एम सॉरी, बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स यू कैन डू, है ना। सो दिस इज एंड सच एन, देयर इज ओनली there's only very few people who accept this कि देयर वाज अ थिंग, एक आदमी बोलता है कि देयर आर दो दो तरह के, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वाइफ्स। पहली तरह की वाइफ होती है जो पति का एकदम कहना मानती है, फालतू की बात नहीं करती है, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देती है, और गॉसिप नहीं करती है, और बढ़िया खाना बनाती है, और खर्चा कम करती है, और और हाँ, और पैर भी दबाती है ना। ठीक है, वो कहता है अच्छा ठीक है। और दूसरी तरह की बच्ची, दूसरी तरह की वाइफ होती है जो रियल होती है ना। सेकंड सेकंड काइंड ऑफ वाइफ इज अ रियल वाइफ, जो हमारे पास है ना। तो ये जो आइडेंटिटी है कि हाँ यार, वाइफ्स आर प्रॉब्लम देने के लिए है, लेकिन एक्चुअली क्या है, वाइफ प्रॉब्लम देने के लिए नहीं है। वाइफ किस लिए है? वाइफ हम लोगों को, वाइफ्स आर देयर टू टेक अस बैक होम बैक टू गॉड हेड। That's all the wife wants to do, nothing else, there is no other thing, है ना। Anyway, so, और यार टाइम 57 56 हो गया। तो anyway, we'll stop here. ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। Anybody has any questions, any comments, anything that you guys want to share in next few minutes? मेरे को तो पता ही नहीं लगा इतनी देर हो गई, मेरे को 3 4 पॉइंट्स और है। हरे कृष्णा प्रभु, हाउ आर हरे यू? कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी। वेरी नाइस टू सी। नाम संकीर्तन प्रभु भी हैं कि? हाँ जी प्रभु, मैं भी हूँ। अच्छा, आप भी हो। मैंने कहा यार, हमारे हमारी पूरी क्लास में ना, देखा जाए तो सिर्फ मितुल प्रभु ही आते हैं, देर इज ओनली वन मेल, है ना। अब किसको अपने दिल की दर्द बताओ, है ना। बेस्ट पॉइंट था, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ नहीं, दिस इज माता जी, मैं आपको दिस इज एक्चुअली रियली, दिस इज द ओनली थिंग दैट वर्क्स। एनीवे, अरे, इज दिस बोस, जो आलोक बोस, इज दिस बोस अंकल? हाँ जी, हाँ हाँ जी नमस्ते अंकल जी, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू फॉर कमिंग। एनीवे। प्रभु, तो हाँ जी, जो आपने पॉइंट बोला ना कि सर्विस से रिलेटेड, हम्म। वैकुंठा में क्या एटीट्यूड है, तो जैसे नंदूलाल प्रभु हमेशा आगे करते हैं, बट इट हाँ इज डिफिकल्ट टू कल्टिवेट। कि हमें तो खुद बोल रहे हैं कि हम सर्विस लेंगे, हमें वो एटीट्यूड कल्टिवेट करना है, हम्म। लेने का। फिर इन दी एंड हम कह रहे हैं कि दो सेवा दूसरों को देनी चाहिए एंड खुद को पीछे रखना चाहिए। हाँ, एक्चुअली क्या है माता जी, मैं तो, मेरा तो सिर्फ एक सिंपल सा फंडा है, जब हम नंदूलाल प्रभु जैसे बन जाएंगे ना, तब हम लोग सर्विस दे सकते हैं, तब तक लेते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अभी क्या है, हम लोगों को बहुत सारा प्योरिफिकेशन चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि किसी की सर्विस मार लो, लेकिन वी शुड नॉट से नो टू सर्विस until we get to that point जहां पर हम लोग सोचें यार देखो, ये सर्विस से ना मेरे को बहुत सुकृति मिल रही है, लेकिन राइट नाउ आई थिंक मितुल प्रभु नीड्स मोर सुकृति, लेट मी आस्क मितुल प्रभु फर्स्ट। वो जो टाइम आएगा वो अपने आप ही आ जाएगा। Until then, we should focus on कि यार how can I purify myself right now so that I can become the best version of myself for this Chaitanya Mahaprabhu's mission, है ना। और उसके लिए कई बार, we have to say no to people, है ना। We have to say things जो हम probably people will not like, whatever it is। लेकिन हमारा मूड ये होना चाहिए कि how can I make sure कि ये जो मिशन है ना, जो शिल प्रभात का मूड है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए बस। उसके लिए अगर हमें सर्विस देनी पड़ रही है तो, अगर हमें सर्विस के लिए पुश करना पड़ रहा है कि नहीं यार मेरे को चाहिए ये सर्विस, बट आपको पता है कि सामने वाले को आपसे ज्यादा चाहिए, देन लेट इट गो, इट्स ओके। क्योंकि क्या होता है, कई और किसी ने मुझे बताया था कि सर्विस करने से जो स्वीकृति मिलती है, वो सर्विस किसी को दूसरे को देते हैं उससे ज्यादा मिलती है। मैं आपको एक नंदुलाल प्रभु का एग्जाम्पल बताता हूँ। 2 बार मैंने देखा है, एक तो जन्माष्टमी वाले दिन सुबह, और एक बार नित्यानंद त्रयोदशी वाले दिन, है ना। दोनों दिन ना नंद दुलाल प्रभु की आरती पर एज ए ब्राह्मण, भगवान को, भगवान की आरती करने का सुबह उनको वो था, उनका वो स्केड्यूल था। दोनों बार उन्होंने उनको दे दी अपने जय सची प्रभु। मैंने देखा वो खुद ही अपनी शॉल उतार के जय सची प्रभु को बोला, जय सची प्रभु आप, उन्होंने अपना कुर्ता उतारा, उनको शॉल पकड़ाई और उनको
ऑल्टर में भेज दिया। आप सोचो, मैं आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, नंदुलाल प्रभु वांटेड, नंदुलाल प्रभु को पता है, ये पता है कि जैसे जी प्रभु को ना आगे जाके सर्विस करने की वो नहीं है, लेकिन उनको ये भी पता है कि उनको ये लगता है कि आई एम नॉट एज प्योर एज जैसे जी प्रभु, सो लॉर्ड विल बी मोर प्लीज्ड व्हेन जैसे जी प्रभु डज दिस टुडे, है ना। नाउ आप खुद ही सोचो, लॉर्ड विल बी मर्सीफुल टू जैसे जी प्रभु ऑब्वियसली, क्योंकि अगर उन्होंने ये चीज ऑर्गेनाइज करी है तो ऑब्वियसली ही जैसे जी प्रभु इज हाईली एलिवेटेड, but who gets the most benefit out of this? Nandulal Prabhu. You know, he will get this amazing service, this Sukriti, only because he has given his service away. Such an honor to do Lord's seva on the most auspicious day. Millions of life, एक एक सर्विस का millions of times बेनिफिट मिलता है। तो वो जो मिलियंस ऑफ टाइम बेनिफिट्स उनको मिल रहा था, वो मिलियन टाइम उन्होंने बेनिफिट उनको जैसे ची प्रभु को दे दिया, लेकिन ट्रिलियंस ऑफ बेनिफिट उनको अपने आप मिला, बट उन्होंने उस बेनिफिट के लिए नहीं करा, उन्होंने ये सोच के करा कि आई थिंक ही इज मोर क्वालिफाइड टू डू इट टुडे। सो ये जो मूड है जब तक हमारे पास नहीं है, तब तक वी शुड कीप डूइंग आवर सर्विस, कोई हमें सर्विस के लिए बोलता है, से यस, है ना, कोशिश करो कि वी कैन से यस, बट ऑब्वियसली अपनी खुद की वो भी देखना है कि वी शुड नॉट बिकम वेरी फेनेटिक भी नहीं होना है कि यार घर वाले कुछ बोल रहे हैं और हम लोग परेशान हो जाए, है ना। वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग वी आर लुकिंग आफ्टर आवर फैमिली फर्स्ट एंड फिर हमारी सर्विस, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि घर में मतलब बच्चे नेग्लेक्ट हो रहे हैं, हस्बैंड या वाइफ नेग्लेक्ट हो रहे हैं एंड वी आर एक्चुअली डूइंग लॉट ऑफ सेवा, वो भी नहीं होना चाहिए, वेरी क्योंकि नाइस एक्सप्लेनेशन प्रभु, है आंसर। ना। या आई रेड इन द बुक प्रभु, जो फॉल्स ईगो बुक थी ना, उसमें यही कह रही थी माता जी, दैट वी नीड टू कल्टिवेट दैट एटीट्यूड कि वैकुंठा में ऐसे ही है, दे कीप देमसेल्व्स बिहाइंड एंड दूसरों को आगे करते हैं, दूसरों को आगे करते हैं। एंड इफ वी डू नॉट कल्टिवेट दैट एटीट्यूड, देन हमारे लिए वैकुंठा के डोर्स बंद हैं। तो मुझे बहुत लगा, मैंने कहा इतना कुछ करके भी डोर्स बंद ही हो। नहीं, वैकुंठा में जब भंवरा होता है ना, भंवरा, भंवरा ब्र ऐसे करके आवाज करता है, जब भंवरा हरि नाम कर रहा होता है ना, तो कोयल चुप हो जाती है कि बोले नहीं ये हरि नाम चल रहा है, ही शुड गेट इट, है ना। ये नहीं कहता अरे चुप कर यार, तेरी बुरबुर बुरबुर कर से मेरा दिमाग खराब हो रहा है, भगवान को नहीं अच्छा लग रहा है, लेट मी सिंग, आई एम बेटर सिंगर, नहीं, बिकॉज ही नोज दैट भंवरा, आई एम गोना पुश भंवरा आगे अहेड, सो ताकि भगवान की नजरों में भंवरा आ जाए, है ना। एंड दैट्स व्हाट द एटीट्यूड, हमारा जब तक वो एटीट्यूड नहीं होगा तब तक हमारी एंट्री है नहीं वैसे, एंड इट इज हार्ड, बट अगर हम लोग सब लोग साथ में होंगे ना, वी कैन कल्टिवेट इट, all of us, we can together, we can cultivate it. राइट प्रभु। Very nice, thank you Mataji, thank you, that was really good. All right, we'll stop here. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम हरे की कृष्णा जय। प्रभु। हरे कृष्णा माताजी, हाँ बोलिए। प्रभु बस I just want to know कि are you fine? You were saying, you were mentioning that we were going to hospital. What happened प्रभु? Oh no no, रॉक्सी और नारायण दोनों की तबीयत खराब है। रॉक्सी को ना कोई माइल्ड निमोनिया बताया है, उसका आज उसको वो करवाया, क्या बोलते हैं उसका, क्या बोलते हैं उसको, उसका एक्सरे करवाया, ब्लड टेस्ट वगैरह, काफी सारी चीजें करवाई आज, तो उसको बताया कि उसको माइल्ड निमोनिया है और ठीक हो जाएगा, उसमें कोई वो नहीं, बट अभी संडे को वापस लेके जाना है। तो वो पूरे दिन हम लोग 4-4 5-5 घंटे, आज 5 घंटे डॉक्टर के पास ही थे हम लोग। फिर नारायण की भी तबीयत खराब है, रॉक्सी की, नारायण को तो टॉन्सिलाइटिस है। You still have we are very grateful प्रभु कि आपने इतने कमिटमेंट के साथ इतनी सुपर सिचुएशन में भी क्लास दी। नहीं नहीं नहीं, और वो तो सुला दिया था ना उनको, तो इट्स ऑल very गुड। grateful प्रभु ये तो कि मेरी, आपने आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग मुझे ये मौका देते हो, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी, आई एम, आपने नाम संकीर्तन प्रभु का मैं बहुत थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक तो ये क्लासेस इतनी अच्छी दी, और उसके अलावा ही इज गेटिंग मी टू डू दिस सर्विस एज वेल, सो आई एम वेरी, classes were very nice प्रभु। We were not feeling separation from Bhagavatam or Bhagavad Gita, but we were feeling separation from Brijesh प्रभु। We were really missing you प्रभु। But no, classes were really amazing. I Thank you know, so much to I Nam know, Sankirtan प्रभु। नाम संकीर्तन प्रभु is a legend,
कब अरे कब प्रभु कीर्तन अभी के ज्यादा जाने की ज्यादा बात बात है। मत करो नाम संकीर्तन प्रभु के बारे में। He's awesome. He's awesome. So we'll see you on Friday. और मिथुल प्रभु I'll see you probably on Sunday रथ यात्रा में, ठीक है? हरे कृष्णा। नमस्ते अंकल जी, दंडवत प्रणाम पापा आपको। आपको कैसे हैं आप? नमस्ते बोल रहे थे। कैसे हैं? हरे कृष्णा अंकल जी। बढ़िया, आप कैसे नहीं होता? बस अभी फ्राइडे को आप आ रहे हैं ना क्लास में? हेलो, फ्राइडे को आएंगे आप नहीं, क्लास में? बहुत कट रही है। नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आज। फ्राइडे को आएंगे आप क्लास में? फ्राइडे को आएंगे क्या पूछ रहे अब पापा की तबीयत अगर ठीक तबीयत नहीं है। ठीक है तो जरूर आऊंगा सर। अरे आप टेंशन मत लो, हम प्रे करेंगे आपकी तबीयत बिल्कुल और ठीक होगी। आपको चाहिए तो हम लोग हेलो, पिक कर लेंगे आपको। आज जी जी, चलो, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की आवाज जय। बिल्कुल नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।